करतापुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ क्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिनों तो इस पावन अस्थान ते लड़ीवार एक विचार दास ने आरंभ की हुई है। थोड़ा जिहा रिपीट करते हैं। पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू समूह ब्रह्मंड नूं बनाया है पंज तत्तां दे विच। मनुख नूं करता ते तां मनीए जे ओ किधरे छेवा तत्त बना देवे, तो ऐसी गल ते है नहीं। समूह संसार ब्रह्मंड पंज तत्तां दे विच ने। शरीर पंज तत्त दा पुतला है और शरीर नूं परमात्मा ने पंज ज्ञान इंद्रिय दिते ने। शरीर भी पंज ने। पंज रस दिते ने। पंज रसां दा नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कुछ वेख के रस लेंदे आ, कुछ सुन के रस लेंदे आ, कुछ चख के रस लेंदे आ, कुछ स्पर्श करके ते कुछ सूंघ के। ये पंज ही रस ने, छेवां कुछ रस नहीं है। और अगां चलिए, कर्म इंद्रिय भी पंज ने, ज्ञान इंद्रिय भी पंज ने, रस भी पंज ने, मूल विकार भी पंज ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हां पंजां दी बड़े सोहणे ढंग नाल व्याख्या कीती है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोकां च। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पंज तत्त दा पुतला है और पंज कर्म इंद्रियां दा जोड़ है, पंज ज्ञान इंद्रियां दा इकट्ठ है, पंज विकारां दी खान है। ਇਹਦੀ झोली च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने रोज ने नितनेम वजों पाइया ने पंज बाणियां और झोली दे च पाए ने पंज ककार। मुफ्त दे च नहीं, पंज सिरां दी मंग करके। पंज बाणियां दी तुच्छ बुद्धि अनुसार आपने कल वजाहत सरवण की। प्रथम जप जाप सवैये चौपई आनंद। तुच्छ बुद्धि अनुसार दास ने कल थोड़ी जी तफसील आप जी के सामने रखी सी। पंज ककार पंज कके। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तो, सिखी सिखिया गुरु विचार। सिंह दा जन्म होया है गुरु दी तलवार तो, जो केसगढ़ साहब विसाखी वाले दिन मयान चो निकली सी, उसे ही तलवार दी धार तो सिंह दा जन्म होया है। सारी दुनिया दे असी दो नामा करके जाने जाते हैं, सिख करके
ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖ, ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 9 ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਖ ਮੇਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇਂ ਪੁਰਖਾ, ਕੌਣ ਵਿਧੇ ਵਿਧ ਜਾਣੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਤੱਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਅੰਗ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਅੰਗ। ਅਧੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਧੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਰ ਮਦੀਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਚਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਨੇ। तो मां बाप तो ये शरीर आया है, तो मां बाप की अंश शरीर विच मौजूद है। अगर शब्द की विचार तो सिख का जन्म होया तो सिख को शब्द की विचार चाहिए, जे नहीं है तो जन्म कोई नहीं। जिस तो जन्म होवे उहदी अंश दे नाल होंदी है। सिखी सिखिया गुरु विचार। कहंदे ने दो जन्म होंदे ने, एक जन्म असी मां बाप दे घर लिया है, एक जन्म गुरु दे घर होंदा है। दो पिता साडे, एक नादी एक बिंदी। शास्त्रकार इसनूं इंज कहंदे ने, नादी बिंदी। बिंदी पिता जो साडा शरीरक पिता है, नादी पिता जिसदे शब्द तो असी पैदा होए, जिहदे नाद तो असी पैदा होए, जिहदी विचार तो असी पैदा होए। गुरु नानक साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। कलगीधर
साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। बिंदी पिता दे घर जन्म लैके असी पुत बन जाते हैं, सुत बन जाते हैं। नादी पिता दे घर जन्म लैके असी सिख बन जाते हैं। इंज ले लो, इसकी विचार है इंज। मां बाप दे घर जमे सुत पुत, मां बाप दे घर जन्म लैके जन्म मरण मिटते नहीं ने, चलते ही रहते ने। पर गुरु दे घर जन्म लेंदे आई जन्म मरण मिट जाते हैं। सिख दा कोई जन्म नहीं, फिर अगे फिर कोई मरण नहीं। तो गुरु दे घर जन्म हो गया। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, बड़ी सोहनी पंक्ति है। गुरु दे घर जन्म हो गया है, जन्म मरण मिट गए, खत्म। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। एक जन्म मां बाप दे घर होना हो गया, पुत ते असी बन गए किसे दे, सुत ते असी किसे दे बन गए। इंज कह लो, मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु सिख नूं जन्म देंदा है। और एक पंक्ति जो भाई गुरदास जी की, उसमें मैं स्पष्ट करा ताकि एक विचार पूरी तौर पर साडे जहन विच बैठ जाए। और मैं मूल गल जो अर्ज करन लगा, सिख ओ जिहदे अंदर पंज बाणियां गूंजदियां, मूल मंत्र गूंजदा है, गुरु मंत्र गूंजदा है। सिंह ओ जिहदे तन दे उत्ते पंज ककार ने। सिंह होना साडा बाहर दा रूप है, सिख होना साडी बुनियाद है, फाउंडेशन है, बुनियाद। जैसे मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ नहीं दिखाई देंदी। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। पर जड़ां दा जो प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है, ते दरख्त दा जो गुप्त हिस्सा है उस दियां जड़ां ने। मकान दा जो गुप्त हिस्सा है उसकी बुनियाद है, ते बुनियाद दा जो प्रगट हिस्सा है वो मकान है। शरीर दा जो गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, ते आत्मा दा जो प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। संसार दा जो गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते निरंकार दा जो प्रगट हिस्सा है वो संसार है। सिख दा जो प्रगट हिस्सा है वो सिंह है, ते सिंह दा जो गुप्त हिस्सा है वो सिख है। सारी दुनिया दे असी दो नामां करके जाने जाने आ, सिख करके, सिंह करके। सिख नाम दिता है सानू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। सिंह नाम दिता है सानू धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। विद्वान दास की समझ के मुताबिक सिंह साडा तखल्लुस है, सिख साडा नाम है, कौमी। साडा कौमी नाम सिख, साडा कौमी तखल्लुस उपनाम सरनेम सिंह। सिख सिंह सारी दुनिया च असी ना दो नामा करके जाने जाने हैं, सिख सिंह। सिख बुनियाद है, सिंह तामीर है। सिख जड़ा ने, सिंह दरख्त है। कई मैनू कहन लग पैंदे ने, गहनी जी अंदरों सिक्खी चाहिए है, बाहर की गल छड्डो। ते जे अंदर जड़ा हरियां भरियां होण ते बाहर ते अपने आप पत्ते होंदे ने, शाखां होंदियां ने। बाहर दा रुंड मुंड दसदा पिया, जड़ा उजड़ गईयां ने, जड़ा सुक गईयां ने, पत्ते रहे नहीं, शाखां सुक गईयां। इस गल का सबूत है जड़ा कित्थे रहीयां ने। अंदरों होंदी ते बाहरों जरूर पुटनी सी। जड़ा हरियां होंदियां ते बाहर हरे पत्ते फुल फल जरूर लगने सन। सिंह होना साडा बाहर दा स्वरूप, सिख होना साडी अंदर दी बुनियाद। बुनियाद रखण दे बड़ा समा लगा। गुरु नानक नूं 9 रूप धारण करने पे, धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं। एक लंबी चौड़ी कथा है जो गुरु प्रताप सूरज दे च लिखी है, ते दास ने अपने ढंग नाल विचार कीती है, पर हुण समय नूं मुख रखना पैंदा है। ये खुलियां विचारां ते फिर किसी वक्त आप जी दे सामने लड़ीवार रखांगे। इस वक्त मुख्तसर सिख साडा गुप्त हिस्सा है, सिंह साडा प्रगट हिस्सा है। आप सुन के हैरान होवोगे, परमात्मा दे भी 2 नाम ने, निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप,
सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। जो दिखाई दे रहा है वह सरगुण है, जो दिखाई नहीं देता वह निर्गुण है। दो रूप, साडे भी दो रूप, सिख ते सिंह। ते हुण मैं अर्ज करा, गुरु दे भी दो रूप, एक नहीं है। गुरु दे भी दो रूप। प्राचीन काल तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी च खंडा, श्री साहब या बरछा कुछ ना कुछ रख देंदे सन। तो मैं पहले समझदा सी सजावट है, बिल्कुल सजावट। तमाम अस्थानां दे विच, डेरियां दे विच, आश्रमां दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च एक श्री साहब रख देती, या एक खंडा रख देता, या कोई तीर रख देते दो। इस तरह आम गुरुद्वारे देखने को मिलता है तमाम भारत दे विच। मैं समझदा सी ये सजावट है, लेकिन आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये समझ मैनू भी सन 84 च पई है, उस तो पहले नहीं। हालात कुछ इस ढंग दे बने, मैनू काफी कुछ ठोकरां खाणियां पईयां ते मैं उन्हां दिनां च जाके हजूर साहब 15-20 दिन रहना जो है बना लिया, बई इत्थे रहिंदे आ 15-20 दिन। प्रबंधकां ने हुक्म कर दिता भी तुसीं इतने दिन रहना है तो सवेरे कथा जरूर करो। भावें मैं उन्होंने कहने लगा भी नहीं, मैनू रेस्ट करने दे, मैं आया उंज ही आराम करना है। पिछोकड़ गल दा उन्हां विचारियां नूं ना पता, तो मैं कथा खैर शुरू कर दी। जिहड़े सज्जन थोड़े विचों हजूर साहब गए होणगे उन्हां नूं पता होवेगा उत्थों दी मर्यादा दा। अंदर जो अंगीठा साहब है उत्थे शस्त्रां दी सजावट है। शस्त्र अमृत वेले कीर्तन आरंभ हो जाता है और गालबन 6-6:15 बजे दरवाजे खुलते हैं। जैसे दरवाजे खुलते हैं पहले नगारे बजते हैं और संगतां परिक्रमा करदियां ने, बार बार परिक्रमा करदियां ने। वारी वारी गेट खुलते हैं, पहला, दूजा, तीजा, चौथा, इस तरह वारी वारी दरवाजे खुलते हैं और संगतां परिक्रमा करदियां ने। ते चारें दरवाजियां ते मत्था टेक के फिर अरदास होंदी है, फिर संगतां बैठदियां ने, हुक्मनामा होंदा है, फिर रागी सिंह बदल जाते हैं, दूजा जत्था बैठता है। उत्थों दी यह मर्यादा। और उस जत्थे दी कीर्तन की समाप्ति तो बाद कथा होंदी है। उदास करता रहा सी। मैं एक दिन जब अमृत वेले बैठा जाना रोज आंदा सी, वो जो परिक्रमा हुई, जैसे मैं परिक्रमा आरंभ की थी तो दरवाजा खुला, लोगों ने मत्था टेकना शुरू किया। मैं भी रोज टेकदा सी, और अज तर्क पैदा हो गई। मैं कहते सामने पिस्टल ने, टोपीदार बंदूकां ने, बरछे ने, नेजे ने, तलवारां ने, इन्हां नूं मत्था टेकी। ये कोई साडे गुरु ने? यकीन जानो तर्क बुद्धि के मुताबिक तर्क पैदा हो गई, अकल अगे आ गई, श्रद्धा पिछे रह गई। मैं कि हद हो गई, पिस्टल नूं क्यों मत्था टेकीए, कि बंदूक नूं क्यों मत्था टेकीए? कोई साडी गुरु है? इस तरह की बड़ी प्रबल तर्क पैदा हो गई। तो मैं सामने खड़ा हो गया, मैं परिक्रमा भी छोड़ दी, सोचां च पै गया मन। उस वक्त इसी शब्द के पुजारी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मत्था टेकण वाले हाँ, तो यह कि तीरां नूं मत्था टेकना, तलवारां नूं मत्था टेकना, बरछियां नूं मत्था टेकना, और छोटियां छोटियां टोपीदार बंदूकां नूं मत्था टेकना, पिस्टल पए ने, इन्हां नूं मत्था टेकना। तर्क पैदा हो गई। पुजारी सिंह भी सामने बैठा मैनू देख रहा सी, हस भी पिया भी इस सिंह दे अंदर, इस ज्ञानी सिंह दे अंदर कोई तर्क जरूर पैदा हुई। परिक्रमा हुई, अरदासा होया, हुक्मनामा होया, संगतां बैठ गईयां, मैं भी बैठ के। रागी जत्था बदले ते रागी जत्थे ने एक शब्द आरंभ किया, अस किरपान खंडो खड़क।
तुबक तबर अर तीर, सहब सरोई सहती यही हमारे पीर। ये खंडा, ये सहती, ये तोप, ये बंदूक, ये तलवार, ये नेजा, ये बरछा, ये मेरे पीर ने, मेरे गुरु ने, ये मेरे मुर्शद ने। बस एकदम दिमाग सोचां च पै गया, मुर्शद, पीर, बस उत्थों ही ख्याल मेरे बने, सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तो, सिंह दा जन्म होया है गुरु दी तलवार तो। जिस तो जन्म होंदा है उस दा मुर्शद होंदा है। शब्द तो जन्म होया सिख दा, तो सिख ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकेगा, शब्द नूं मत्था टेकेगा। सिंह दा जन्म होया शस्त्र नूं, तो इते शस्त्र नूं मत्था टेकेगा। फिर मैनूं समझ आई कि सारे गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी 'ਚ तीर क्यों रखते हैं, खंडा क्यों रखते हैं, श्री साहब क्यों रखते हैं। दरअसल सिंह किस नूं मत्था टेके, सिंह ते शस्त्र नूं मत्था टेकेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी आप सारी थां बेनती करते हैं, जोदड़ी करते हैं, और जितनी बाणी वो बेनती के रूप में। एक थां ते कहंदे ने मेरी बेनती नहीं मेरा हुक्म है, बेनती नहीं, जोदड़ी नहीं, हुक्म है, और मेरा हुक्म मनना ही पड़ेगा। मैं हैरान, सारी बाणी विच बेनती, तरला, जोदड़ी, लेकिन एक थां ते कहंदे नहीं मेरी आगे है। ये बचन ने पातशाह दे, है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। ये मेरी आगे है, ये मेरा हुक्म है, बिना शस्त्र ते बिना केस तो मैनू दर्शन ना देने, मेरे कोल ना आना। बिल्कुल इनकार, बिल्कुल इनकार। तो इन्हां दी महानता तो हुण मैं तुहाडे सामने रखनी है। बिल्कुल इनकार, भी मेरे कोल आ ही ना, गल खत्म। और फिर कहते ने मेरी जोदड़ी नहीं है, कोई मेरी बेनती नहीं है, मेरा हुक्म है, मनना ही तो गल कर। है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। मैं उस वक्त खड़ा हो गया, मैं प्रकरमा आरंभ की, जिहड़ियां पहले प्रकरमा मैं छोड़ दित्तियां, मत्था टेक के दरवाजे ते मैं कहा गुरु मेरे को अवज्ञा हो गई, भुल हो गई, समझ नहीं सी। भावें अज ये तू मैनू समझ दी है, अज ही तरक पैदा हो गई सी मेरे अंदर। इस पावन अस्थान ते जिथे लोकी शरधा लैके आंदे ने, शरधा वधा के जांदे ने, इत्थे ही मेरी शरधा नूं ठेस लगी, इत्थे ही मेरे अंदर तरक पैदा हुई। और धन गुरु गोबिंद सिंह ऐ कलगीधर पिता तो आप ही इस तरक नूं दूर कीता है और आप ही समझ देते। मैं परिक्रमा आरंभ की थी ना, तो देखने वाले भी हैरान सन, जो परिक्रमा हो रही सी उदों ते कंबख्त खड़ा रहा तो हुण परिक्रमा पिया करता है। मैं 4 दफा ही परिक्रमा की थी, बार बार मत्था टेकिया, अपनी भुल बख्शाई। हाँ, सिंह दा गुरु ते शस्त्र है, सिख दा गुरु शब्द है, सिंह दा गुरु शस्त्र है। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो। जो विसाखी वाले दिन श्री केसगढ़ साहब दे मयान चो निकली सी, उत्थों ही सिंह दा जन्म है। सिख साडी आत्मा है, सिंह साडा स्वरूप है, इंज कह लो। सिख साडा सुभाव है, सिंह साडा स्वरूप है। 2 रूप आउंदे ने, सुभाव ते रूप। रूप साडा सिंह है, सुभाव साडा सिख है। साडे सुभाव विच गुरु दी विचार है, असी गुरु दी विचार दे मुताबिक विचरदे हां, जगत नाल संबंध जोड़दे हां, पर बाहरों असी सिंह। गुरु दे विचारां दे च प्रेम है, भक्ति है, दया है, ज्ञान है, विज्ञान है, निर्वैरता है, निर्भयता है, कला है, संगीत है। गुरु दे विचारां ये सिख कोल चाहिदा, नहीं तो सिख नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा।
जे प्रेम नहीं है, भगति नहीं है, दया नहीं है, निर्वैरता नहीं है, निर्भयता नहीं है, सिख नहीं है। सिखी सिखिया गुरु विचार। वो सिख है जिदा गुरु दी विचार तो जन्म होया। जद असी कहने ना ये फलाना बंदा बदल गया है, की बदलिया? हाथ पैर बदल गए ने, मुंह मत्था बदल गया? कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गए ने, सोचनी बदल गई। सोचनी दे बदलदे सब कुछ बदल जाता है। कहने हैं ते मनमुख होंदा से गुरमुख हो गया। तो जो हुण गुरमुख हो गया तो कोई मोर दे पंख लग गए ने, जद मनमुख सी ते सिर दे ते कोई सिंह लगे हुए सन? नहीं, विचार बदल गए, सोचनी बदल गई है, अंदर दी दुनिया बदल गई है। मनमुख होंदा सी गुरमुख हो गया, दुष्ट होंदा सी दयालु हो गया, दुराचारी होंदा सी परोपकारी हो गया। अंदर दी दुनिया बदल गई। सिख सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, गुरु दी विचार तो। भाई गुरदास जी ने एक कथा लिखी, उसनों स्पष्ट करा तो यह गल सामने साफ हो जाएगी। 12 बरस बन गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। सुखदेव, ऋषि सुखदेव। आम प्रचलित कथा है, एक मिथ्यास है, पुराणक मत सनातन जगत विच। और भाई गुरदास उसका हवाला देंदे ने कि सुखदेव माता दे गर्भ विच 12 साल तक रहा। गैर कुदरती गल है, ऐसा हो नहीं सकता। गर्भ काल का जो समा है परमात्मा की तरफों जीवां दा फिक्स है। चौपाई जानवर कोई 3 महीने का गर्भ धारण करते हैं, कोई 6 महीने का। गऊ 10 महीने विच अपने बछड़े नूं जन्म देंदी है, मनुखी मां की तरह। 22 दिन पंछी अंडियां ते बैठते हैं, इन्हां विचों बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। इंज कह लो उन्हां दा गर्भ 22 दिनां दा। चौपाए जानवरां दा किधरे 3 महीने, किधरे 6 महीने, किधरे 10 महीने। कुछ ऐसे भी जानवर ने जिन्हां दा गर्भ काल 2 महीने भी मनते हैं, इस तो भी घट ने कुछ 100 इत्यादक। मनुखी मां 10 महीने गर्भ धारण कर, अवधि वध तो वध समा 10 महीने का है। भाई गुरदास कहते 12 बरस गर्भास विच 12 साल। चलो 12 महीने किधरे आते ना, ते दिल दिमाग ते जोर ला के इसनूं मना लेंदे भी ठीक 12 महीने हो गए होंगे। कदी कदी इस तरह भी प्रकृति विच हो जाता है, पर 12 साल तक सुखदेव माता दे गर्भ विच रहा। ते फिर इत्थे तक ही नहीं, जमदे ही सुख लई उदासी। जैसे जन्म होया उदास हो गया। ये गल स्पष्ट है कि उदास बंदियां ने ही परमात्मा की तलाश की है। 1 मिनट इस उत्ते भी मैं थोड़ा लवां। पदार्थ तो उदास बंदियां ने ही परमात्मा की तलाश की है। इस जीवन तो उदास बंदियां ने ही परम जीवन की तलाश की है। संसार तो उदास बंदियां ने ही निरंकार की तलाश की है। जो संसार तो उदास नहीं, उम्मीद नहीं निरंकार की तलाश करे। जो इस जीवन तो उदास नहीं, हो ही नहीं सकता वो परम जीवन की तलाश करे। जो पदार्थों तो ही अजे उदास नहीं होया, उम्मीद नहीं कि वो परमात्मा की तलाश करे। बाबर कहंदा है, रोजो नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। खा ले पी ले, हर तरह दियां मौजा मार ले, अगली दुनिया किसने देखी है? छो अगे की है, कुछ भी नहीं। बाबर मुगल शहनशाह कहता अगे की है, कुछ भी नहीं। जो सुख माणने ने, जो ऐशो इशरत करनी है, रज के करो। रोजो नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। इत्थों बाबर की जहनीयत का पता चलता है कि किस तरह का बादशाह सी ते की इसकी सोचनी सी। एक पंजाबी मुहावरा भी है
कि ये जग मिठा अगला किन डिठा, अगली दुनिया किसने देखी है, बस यही मिठा है, जो कुछ है यही है। तो मैं फिर अर्ज करा, जो इस तो उदास नहीं होया, जो इस जगत तो उदास नहीं होया, जो पदार्थ तो उदास नहीं होया, जो संसार तो उदास नहीं होया, जो इस जीवन तो उदास नहीं होया, वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा। गुरु नानक देव जी महाराज का भी वाक, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। वो दर मैनू कोई आके दसे जिसनों उदास होके मैं लभ रहा। संसार तो उदास हो गया, परिवार तो उदास हो गया, इस जीवन तो उदास हो गया। कलगीधर पिता भी कहने ने, उदास बंदे ही लभ सकते ने। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। मन विच उदास हो जा, घर नूं जंगल समझ ले, परिवार नूं भी जंगल समझ ले। रह परिवार दे विच छोड़ना, रह घर दे विच घर बार नूं छोड़ना, पर घर नूं ही जंगल समझ ले, जंगल दे जाण दी लोड़ नहीं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो। सदन कहते हैं घर नूं, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। अपने मन विच उपरामता नूं जन्म दे। मैं फिर अर्ज करा, जो संसार तो उपराम नहीं, वो नाम की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थ तो उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। जमदे ही सुख लई उदासी। भाई गुरदास कहते हैं, जमदे ही सुखदेव उदास हो गया ते परमात्मा की तलाश करने लग पिया। ये दूजी अनहोनी गल, एक ते 12 साल तक माता दे गर्भ दे च रहा, ते फिर जमदे ही रब नूं टोलण लग पिया। दोवें गैर कुदरती गल्लां ने। 12 साल ते मैं इस वास्ते खोज करने ते मजबूर होया सी भी ये लिखिया ते भाई गुरदास ने। सिख जगत दे वेद व्यास, महान पंडित, महान दार्शनिक, सियाणे, जिन्हां दे बचनां नूं कुंजी आखिया गया, खोलदे ने, गुरु दे शब्दां नूं खोलदे ने, विस्तार करदे ने, गुरमत नूं खोलदे ने। तो भाई साहब कहंदे पए ने, सुखदेव 12 साल तक माता दे गर्भ विच रहा। तो मैनूं फिर इसकी तफसील विच जाना पिया। एक जन्म सानू मां बाप देंदे ने, एक जन्म गुरु ते गुरु की संगत तो मिलता है, सतसंग तो मिलता है। ये सतसंग मां है, ये भी मैं अर्ज करा। एक जन्म मां बाप तो, एक जन्म संगत तो। सतसंग मां है, गुरु पिता है। एक जन्म इत्थों होंदा है। 12 साल तक सुखदेव सतसंग करता रहा, ऋषि मुनियां की संगत करता रहा। इस तरह वो गर्भ विच सी। जितने तुसी इत्थे बैठे हो गर्भ विच हो, लेकिन इत्थे समा फिक्स नहीं कि कोई किन्ने दिनां विच नवां जन्म ले लेगा, कोई किन्ने दिनां विच ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, संत बन जाएगा, भगत बन जाएगा। ये नवी जिंदगी कितने के दिनां च मिलेगी फिक्स नहीं है। एक दिन भी लग सकता है, एक दिन का गर्भ भी काफी है। वाल्मीकि नूं एक दिन की संगत हुई सी, सिर्फ एक दिन की, जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। सज्जन ठग वो इक्को ही शब्द सुन के बदल गया, इक्को ही शब्द। पता है क्यों? हैरानगी होती है कि गुरु नानक देव जी महाराज या तो सिद्धां कोल गए, जोगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, भगतां कोल गए, संतां कोल गए, या फिर गए दुष्टां कोल, ठगां कोल, चोरां कोल, डकैतां कोल, जालमां दे कोल। जो जालम भी नहीं बन सकिया, ठग भी ना बन सकिया, ते जो साध भी ना बन सकिया, गुरु नानक उस कोल नहीं गए। साध सिद्ध जोगी ओ जो ऊपर चढ़ रहे सन, ठग चोर जालम ओ जो थल्ले लह रहे सन। दोहां कोल जाण दी लोड़ सी। जो ऊपर चढ़ रहे सन उन्हां कोल जाण दी लोड़ सी भी थको ना चढ़ो, किधरे थक ना जाओ, किधरे रह ना जाओ। उन्हां नूं उत्साह देना सी। ते जो थल्ले लह रहे सन उन्हां दा रुख मोड़ना सी भी ऊपर चढ़ो। शक्ति तो है उन्हां कोल, ताकत तो है उन्हां कोल,
पर ना जो ऊपर चढ़ रहा है ना जो थले रह रहा है, इंज विचकार बैठ गया है। गुरु नानक उस कोल नहीं कि इसकी जिंदगी ते गति कोई नहीं, ਇਹਦੀ जीवन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ चाल ही कोई नहीं। यकीन जानो कईयां ਦੀ जिंदगी 'ਚ कोई चाल नहीं ਹੁੰਦੀ, ना ऊपर उठते ना थले। ऊपर उठण वास्ते भी शक्ति समा ताकत चाहिए है, ते थले जाण वास्ते भी हिम्मत चाहिए है। कमजोर बंदा ते डकैत कातिल नहीं बन सकता, आखिर हिम्मत दलेरी ते चाहिए है। ते कमजोर बंदा यकीन जानो भगत संत नहीं बन सकता, आखिर हिम्मत साधना तपस्या ते चाहिए है, मेहनत ते चाहिए है। इस वास्ते गुरु नानक सतसंग मां है। इत्थे एक दिन विच भी जन्म हो सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 12 साल भी लग सकते हैं, एक जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। निश्चित नहीं है समा, कुछ भी निश्चित नहीं है। भाई गुरदास ते इंज भी कहते हैं केते गर्भ गले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ने गर्भ दे ची सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जन्म ते होंदा है मुर्दे, कुछ भी नहीं, मुर्दे गर्भ ही मर गया, उतों जिंदगी मिलनी सी, जन्म मिलना सी, गल गया, सड़ गया, मुर्दा। कई सत्संग करदे ही दुष्ट हो जाते हैं, गुस्ताखी माफ, गुरुद्वारे आंदे आंदे ही भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। मिठ बोलना सुभाव की थां ते उल्टा कौड़ा बोलना। मैं देखदा कई दफा गुरुद्वारे च बहुत सारी थावां ते कई भांडे मांजदियां बंदियां नूं मांजण लग पैंदे ने, जोड़े झाड़दियां बंदियां नूं झाड़न लग पैंदे ने, कौड़ा बोलण लग पैंदे ने। थकिया टुटिया मनुख आंदा हुंदा है, बहुत सारे वड्डे वड्डे इतिहासक स्थान देखे ने, ते टुट के अगले पै जांदे ने। बोलण दा ढंग उहदी थकावट विच होर वाधा कर देंदे ने। कई दफा तो मैं देखदा जिहड़े पुरजे किधरे भी फिट नहीं आउंदे, वो गुरुद्वारियां फिट कर रखे ने। ऐसा देख के मैनूं हैरानगी हुंदी है। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਗਰਭ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਲ ਗਏ, ਸੜ ਗਏ। सतसंग मां है। सुखदेव 12 साल तक सत्संग करता रहा ऋषि मुनिया का, तो नवा जन्म मिलिया। जैसे नवा जन्म मिलिया तो नवा जन्म मिलना की ज्ञान मिल गया, समझ आ गई। समझ एक दिन विच भी आ सकती है, समझ 12 सालों च भी आ सकती है। श्रोता उस दिन सफल जिस दिन उसनों ज्ञान मिल जाए। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। सुरते श्रोता, श्रोता किवें सुच्चा होंदा है जिस दिन इसनों समझ आ जाती है। उस तो पहले पवित्र नहीं होंदा श्रोता। सुनदा ते पिया, रोज सुनदा पिया, समझ नहीं आई, कुछ नहीं समझ आई, न कीर्तन समझदे च आया ना कथा, कुछ भी नहीं पता चले। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। श्रोते की जिहड़ी चुली है वह ज्ञान है, ज्ञान दे मिलदियां पवित्र हो जाता है। समझ मिल गई, सुनना सफल हो गया, उदा सुनना सकारत हो गया। सुखदेव दा जिहड़ा सुनना सी वो 12 साल बाद समझ आई। संगत ते रोज करदा रहा, कथा भी सुनदा रहा, संगत भी करदा रहा, सेवा भी करदा रहा, पर 12 साल बाद समझ आई। जैसे समझ आई मन उदास हो गया और परमात्मा की तलाश करने लग पिया, जप तप करने लग पिया। समझ दे नाल जप तप करना होर गल है। 12 साल बाद उदासी हो गया। तो मैं अर्ज करा, अगर अंदर गुरु दी विचार चल रही है, बाणी वस गई है और समझ भी आ गई है, सिख ओ जिदा गुरबाणी तो जन्म होया है, गुरु दी विचार तो जन्म होया है। सिंह ओ जिसदा गुरु दी तलवार तो जन्म होया है। अंदर बाणी दा वासा है, रसना मूल मंत्र जप रही है, गुरु मंत्र जप रही है, बाणी दा जप कर रही है सिख। तंद ते ककार ने ये सिंह, ये जिहड़े 5 ककार ने भाई साहब भाई नंदलाल ने जिस ढंग नाल लिखे ने, तो मैं थोड़े सामने रखा, तो मूल व्याख्या तो मैं कल करांगा, क्योंकि अज कई थां ते सेवा दास दी लग गई है।
भाई साहब भाई नंद लाल के विचार थोड़े सामने रख के फिर इन्हां दी वजाहत कल, और कल शायद मैं खुला समा ला लवा। पंक्ति है भाई साहब भाई नंद लाल जी का रहतनामा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनन सिख ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मान नाल कहा सी कि लंगर चलदा केवल नंद लाल दे घर, सेवा करने की जाच सीखनी है नंद लाल तो सिखो। आनंदपुर साहब दे गुरु गोबिंद सिंह जी ने इंज कहा सी। और नंद लाल दियां बहुत वड्डियां रचनावां, चूंकि यह उन्हां दा तखल्लुस शायराना सी, गोया नंद लाल तो अमृत पान करने तो बाद भी इन्हां दा तखल्लुस चलता रहा। आप कहते ने निशाने सिखी ई पंज हरफ का, सिखी दियां निशानियां पंज काफ दे हरफां विच बंद ने। काफ कक्का, परशियन दे उर्दू दे कक्का काफ कहते ने, पंजाबी च कक्का के, उन्होंने उर्दू फारसी अरबी दे कहते ने काफ। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, कि हरगिज न बाशद ई पंज माफ। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता वो सिख जिदे कोले पंज काफ नहीं ने, पंज कक्के नहीं ने, पंज ककार नहीं ने। केड़े? तो नंदलाल तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूरी सन, उन्हां दी हजूरी च रहे, और महान दार्शनिक। आप कहते ने ये पंज काफ केड़े ने? निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। कड़ा कार दो काछ कंगा बिना, बिना के सहेच अस्त ई जुमला निशान। भाई साहब भाई नंदलाल, कड़ा है कार दो, किरपान नूं कार दो परशियन विच कहंदे ने। छोटी किरपान, वैसे किरपान के अखरी अर्थ ने दूजे ते किरपा। इस वास्ते शस्त्र पहने दूजे ते किरपा करना, दूजे दे बचाव वास्ते, दूजे दी रक्षा होवे। किरपा आन, दूसरे ते किरपा करनी है, बख्शिश करनी है, इहदे नाल दूजे दी रक्षा करनी है। किहड़े दूजे दी? मजलूम दी, गरीब दी, निमाणे दी, निताणे दी, और अपनी किरपा आन। कड़ाकार दो काछ कच्छा कचहरा, कड़ाकार दो काछ कंगा बिदा। और चौथा कंगा। तो पंजवीं पंक्ति भाई नंदलाल बड़ी गजब की पंक्ति उच्चारण करते हैं, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। बिना केसा तो ये चार निशानियां परवान नहीं, ये हेच ने। लाड़ा ही कोई नहीं तो बरात की मैंने रख दी साफ। बिना केस शब्द केस है, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये जुमला निशानियां, इकट्ठियां निशानियां केड़ियां? किरपान, कंगा, कड़ा, कचहरा। केसा तो बिना नहीं शोभते। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये जुमला निशानियां प्रवान नहीं, माफी का खास्तगार नहीं। सिख, मैं फिर अर्ज करा, जिहदे अंदर शब्द की विचार चलती है। सिंह जिहदे तन दे ते ककार चलते हैं, जिहदे तन दे नाल नाल ककार चलते हैं। सिख जिहदे मन विच गुरु की विचार चलती है, शब्द की विचार चलती है, शब्द का जाप चलता है, वाहिगुरु वाहिगुरु रसना ते चलता है, हिरदे दे चलता है। सिख साडा कौमी नाम है ते सिंह साडा तखल्लुस है। यह भी मैं अर्ज कर लें, तखल्लुस उपनाम सरनेम। जैसे मुगल सम्राट, पुराने दार्शनिक, फिलोसफर, कवि, शायर अपने तखल्लुस रखते सन। जैसे मैं उस दिन अर्ज की थी कि हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन, वो जब सिंहासन ते बैठा, उसने अपना तखल्लुस रखा अकबर। अकबर के अखरी अर्थ ने सब तो वड्डा। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखा जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, उसने तखल्लुस रखा।
जहांगीर दा लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंहासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहजहां, शाहे जहां, सारी दुनिया दा बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान दा नहीं। ते शाहजहां दा लड़का मयूनुद्दीन जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंगजेब उसका नाम नहीं है, नाम उसका है मयूनुद्दीन। जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, भरावां नूं मार के, प्यो नूं जेल विच पा के, भैन नूं जेल विच पा के, ते जिस दिन तख्त ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तख्त नूं ते जेब कहंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तख्त दा शिंगार, तख्त दी शोभा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। कलगीधर पिता उसके तखल्लुस बारे जफरनामे की बाणी जो बात लिखते हैं, मैं थोड़े सामने रखा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरे। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। आए मयूनुद्दीन, ये जड़ा तू नाम रखिया औरंगजेब तेन शोभा नहीं देंदा। औरंगजेब के अखरी अर्थ ने तख्त की शोभा, तख्त का शिंगार, तख्त की मान मर्यादा। सतगुरु कहते तेरे जैसा बंदा जब तख्त पे बैठता है, तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है। तू तख्त की शोभा थोड़ी है, तू तख्त का शिंगार थोड़ी है। सतगुरु की जुर्रत, ये हिम्मत पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। वक्त के शहनशाह नूं आप जफरनामा, जफरनामे दे अखरी अर्थ ने जित दियां चिट्ठियां। हैरानगी की गल, पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए ने, आनंदपुर तबाह हो गया, किले मसमार हो गए ने, सिख मारे जा चुके हैं, संगी साथी भी कोई नाल नहीं रहा, ते जित दियां चिट्ठियां पे लिख दें। हौसला बुलंद है, बड़ी गल। जफरनामा, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेब नबायद फरेब, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी बसिद को सफा। तुम मक्कार हैं, अय्यार हैं, धोखेबाज हैं, तख्त की शोभा थोड़ी है, तख्त का शिंगार थोड़ी है। ये सतगुरु दे वाक। और सुन, अगर सद कुरान बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। हजार कसमां भी किधरे तू कुरान दियां खावें, हो सकता कोई भुलेखे नाल तेरे ते भरोसा कर लवे, मैं नहीं कर सकता। ये सिर्फ औरंगजेब लई आख्या, हर मुसलमान लई नहीं आख्या। आम सिखां दे बड़ा भारी भुलेखा है भई कोई मुसलमान हजार कसमां भी जो है कुरान दियां खावे ते भरोसा ना करो। हर मुसलमान लई सतगुरु ने नहीं आख्या, सिर्फ औरंगजेब लई। ये वाक सिर्फ औरंगजेब लई जो है लिखे ने। कहते ने जफरनामे तो बाद ये बार बार चिट्ठियां लिखियां गई ने। कुछ एहलकार सतगुरु नूं मिले ने औरंगजेब दे, जो सतगुरु नाल हमदर्दी भी रखते सन, प्यार भी रखते सन। कहने लगे, महाराज चाहो ते थोड़ी सुलह करा दईए। सतगुरु कहने लगे, ठीक है, असी खुद सुलह पसंद। तो अगले कहने लगे, फिर एक शर्त है। पता सतगुरु ने की आख्या, जिथे शर्त होंदी है सुलह नहीं होंदी, सुलह होंदी नहीं। जिथे कोई अपनी बहुत वड्डी शर्त रख दी जाए, वो तो ईन मनानी होंदी है। की शर्त है? पता एहलकारा ने साफ कह दिता, महाराज फिर शर्त यही है, तुसी हार मन लो, असी सुलह करा देने। सतगुरु कहते ये नहीं हो सकता। ये पता है एहलकार की कहते, हार तो हो गई है थोड़ी, किले ढह गए ने, सिंह मारे गए ने, पिता शहीद हो गए, थोड़े साहबजादे भी शहीद हो गए, तो हार तो हो गई है। मान लो, तुसी संत हो, फकीर हो, वली अल्लाह हो, सच्चाई नूं कबूल कर लो। साहिब कहंदे ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लैनी होर गल है। मैं मन नहीं सकता, कतई मन नहीं सकता। तो वो उत्थे प्रश्न है एहलकारां दा, इहदा मतलब है तुसीं संघर्ष जारी रखोगे? सतगुरु कहने लगे, हां
पर तुहाडे कोल ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुहाडे कोल है कि कुछ भी नहीं। महाराज कहते ने ये ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं। ते पता है लकार की कहते ने थड़े ते तन दे कपड़े भी पाट गए ने। माछीवाड़े दी गल, थड़े तन ते जगह भी पाटे हुए है। थड़े नाल कोई संगी साथी नहीं। थोड़ी धन संपदा लुटी जा चुकी है। थोड़ा सब कुछ बर्बाद हो गया। हार ते हो गई है। मान लो, कबूल कर लो, ये हर्ज की है। थोड़े कोल कुछ भी नहीं। साहब कहते ने बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? सदगुरु दसते ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। ये तो मैं मनदा कि मेरे कोल फौज नहीं रही। मेरे सिख मारे जा चुके हैं, मेरे किले ढेरी हो गए। मैं मनदा मेरी धन संपदा भी लुटी जा चुकी है, नहीं है। मेरे बच्चे भी मारे गए, मेरा पिता भी शहीद हो गया। मैं मनदा, मैं तस्लीम करदा सब कुछ नहीं रहा। ये मैं मनदा, फिर भी मेरे कोल कुछ है। मैं हार नहीं मनदा। क्यों? की है? ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐसो अर्श। मेरे हृदय च खुदा बैठा है, उसका प्यार बैठा है। ते जितने चिर तक मेरे हृदय च खुदा है, मैं हार नहीं मन सकता। ये खुदा दी हार हो जाएगी, ये सच दी हार हो जाएगी, ये इंसाफ दी हार हो जाएगी। हाँ, मेरा हृदय रब तो इनकारी हो गया तो मैं मन लवांगा हार। जिन्ने चिर तक मेरे हृदय च परमात्मा का प्यार है ते परमात्मा बैठा है, मैं हार नहीं मन सकता। ते हार परमात्मा दी हो जाएगी, ये खुदा दी हार हो जाएगी। इतना हौसला बुलंद गुरु गोबिंद सिंह जी का मैं 84 च देखा। थोड़ी जिया खराशा लोगों को आईयां ते कहने लगे पता नहीं गुरु है भी सही कि नहीं, पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। पर कलगीधर पिता कहते ने मेरे हृदय च खुदा दी याद है, वो बैठा है। ऐ औरंगजेब, मैं तेरे को हार नहीं मन सकता। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शंद ऐशो अर्श। अद्धा मिनट मैं थोड़ा होर लवा। पता एहलकारा ने की आख्या, महाराज तुसी फकीर हो, संत हो, ते संत दा कम है सच्चाई कबूल कर लेना। ते जब सब कुछ तबाह हो गया, हार ते थोड़ी हो गई, ते चलो तुसी इस तबाही नूं ही कबूल कर लो कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। इस तो ही असीं अंदाजा ला लवांगे थोड़ी हार हो गई है। पातशाह दे हुण कबूलन दा ढंग बड़ा निराला मैं थोड़े सामने रखा। जो सतगुरु ने कहे ने उत्थे वाक, संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद। जरी कहंदे ने सोने नूं, कासा कहंदे ने प्याले नूं, संग कहंदे ने पत्थर नूं। बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, साहिब कहंदे ने मैं मनदा कि सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। मैं मनदा। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद, कीमत संग ने फजायद बजर कम नशूद। मैं मनदा कि एक मन का भारी पत्थर चुक के अगर कोई एक सोने दे प्याले नूं तोड़न की कोशिश करे, मैं मनदा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। पर औरंगजेब ते ओदे एहलकारों एक गल सुन लो, सोना टूट के भी सोना है, पत्थर न टूट के भी पत्थर है। सोने की कीमत कोई घटनी नहीं, पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं। मेरे बच्चों नूं रहिंदी दुनिया तक दुनिया शहीद कहेगी, इंसाफ दे उत्ते खड़ा होया कहेगी, और रहिंदी दुनिया तक तेनू दुनिया जालिम कहेगी, दुष्ट कहेगी। ठीक है प्याला टूट गया है, पर सोना सोना है। ये ठीक है पत्थर नहीं टूटेगा, पर पत्थर पत्थर है। सच सच है, झूठ झूठ है, सच्चाई सच्चाई है, जबर जबर है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस तरह के जो है कहण दे जो है ढंग तौर तरीके, तो मैं फिर अर्ज करा, सानू आपने दो रूप दिते, सिख
ਤੇ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਫ, ਕੜਾਕਾਰ ਦੋ ਕਾਛ ਕੰਗਾ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਕੇ ਸਹੇਚ ਅਸਤ ਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਬਿਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹਤ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 22 ਨੂੰ ਦਾਸ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਗਾਲਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਣ ਹੈ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪੰਜ ਰਸ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਆਪਨੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਦੋਗੀ ਮੇਲੇ ਜਦ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਗਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਕੜਾ ਕਾਲ ਦੋ ਕਾਛ ਕੰਗਾ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਕੇ ਸਹੇਚ ਅਸਤ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵੇ। ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।